بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ڈاکٹر سعد ان کو گولی لگی ہے، جلدی سے آپریشن کرنا ہوگا ان کا، عدن نے روتے ہوئے کہا۔ مجھ سے آپریشن نہیں ہو پائے گا ڈاکٹر سعد، مجھ میں ہمت نہیں، میں غزان کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی۔ آپ پریشان نہیں ہوں، ہم ہیں نا، آپ بے فکر رہیں۔ ڈاکٹر سعد اپنی ٹیم کے ساتھ آپریشن تھیٹر میں چلے گئے۔ آپریشن سٹارٹ ہو چکا تھا۔ عدن تھک چکی تھی، بہت بے بس محسوس کر رہی تھی عدن خود کو۔ یہ کیسی مجبوری تھی، اتنی باتیں، اتنا سب کچھ سننے کے بعد بھی کیوں آخر؟ غزان کو کھونے کا ڈر ستا رہا تھا۔ عدن اٹھ کر نماز پڑھنے لگی۔ یا اللہ، میں نے اپنی زندگی میں ہر بار ہر رشتے کو کھویا ہے، اب مزید ہمت نہیں ہے مجھ میں۔ ہم تو مٹی کا ایک کھلونا ہے جو تیرے کن سے تخلیق ہوئے۔ میرے مولا، تیری مرضی، تو جوڑ دے، تیری مرضی تو توڑ دے، تیری مرضی تو حق کر دے۔ پر یا اللہ، میں بھی تیری بندی ہوں، تیرے کن سے تخلیق ہوئی ہوں، تیرے کن سے تخلیق کیے ایک مٹی کے کھلونے پر دل ہار بیٹھی ہوں۔ میرے مولا، تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو اپنے بندوں کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ میرے مولا، مجھ پر رحم کر، غزان کو کچھ نہیں ہو، پلیز اللہ تعالیٰ، وہ ٹھیک ہو جائے، اس کو ٹھیک کر دے۔ عدن سجدے میں رو رہی تھی، دعا کر رہی تھی۔ جب انسان بہت تھک جائے اور اس کے پاس کسی کا کندھا میسر نہ ہو جہاں وہ سر رکھ کر رو سکے، لیکن اگر کندھا میسر ہو بھی تو ویسا سکون نہیں ملتا جو رب کے آگے رونے میں ملتا ہے۔ عدن نماز پڑھنے کے بعد آپریشن تھیٹر کی طرف آ گئی اور دل ہی دل میں قرآن پاک پڑھ رہی تھی۔ اتنے میں ڈاکٹر سعد آپریشن تھیٹر سے باہر آئے اور عدن کو دیکھنے لگے۔ عدن کا دل دھک دھک کرنے لگ گیا تھا۔ کیا ہوا سعد، غزان ٹھیک تو ہے؟ عدن نے بے چینی سے پوچھا۔ ہم نے ان کے سینے سے گولی نکال لی ہے اور آپریشن بھی کامیاب رہا، بس کچھ دیر میں انہیں ہوش آ جائے گا، آپ پریشان نہیں ہوں۔ عدن نے خدا کا شکر ادا کیا، شکرانے کے نفل پڑھ کر غزان کے پاس آ گئی۔ کہا تھا نا میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی، تمہیں رب سے مانگ لاؤں گی، میں تمہیں رب سے مانگ کر لائی ہوں غزان۔ عدن نے روتے ہوئے غزان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ غزان کو دھیرے دھیرے ہوش آنے لگا تھا۔ اس نے تھوڑی سی آنکھیں کھولی۔ عدن ہاتھ چھوڑ کر اٹھنے لگی۔ غزان نے ہاتھ پکڑ لیا۔ کیوں ہاتھ چھوڑ رہی ہو؟ پکڑ کر رکھو، اچھا لگ رہا ہے۔ غزان ابھی ہوش میں آیا تھا، اس لیے بولنا محال ہو رہا تھا۔ دیکھیں غزان صاحب، آپ کو ابھی ہوش آیا ہے، آپ کے لیے زیادہ بات کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کو آرام کی ضرورت ہے، صرف آرام کی نہیں، کسی اور کی بھی ضرورت ہے۔ کس کی؟ عدن نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر عدن کی، مجھے آرام کے ساتھ ساتھ عدن کی بھی ضرورت ہے، نہیں تو میں مر بھی سکتا ہوں۔ غزان نے معصوم سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ شٹ اپ، بکواس بند کریں، آپ کو میں نے آرام کرنے کا کہا ہے، بکواس کرنے کا نہیں کہا۔ غزان کے مرنے کا سن کر عدن کے دل کو کچھ ہوا۔ غزان کو کیا پتا کہ عدن اس کے لیے کتنا روئی تھی۔ آپ آرام کیجئے، مجھے اور بھی کام ہے، میں چلتی ہوں۔ سنو، عدن جانے لگی۔ غزان روکنے لگا تو اس کو درد شروع ہو گیا۔ کیا ہوا؟ عدن نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ درد ہو رہا ہے بہت زیادہ۔ سنو، مت جاؤ نا، میرے پاس رہو کچھ دیر۔ عدن، آئی ایم ریئلی سوری، میں جانتا ہوں میں نے بہت غلط کیا ہے، مجھے تم سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی، میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں، تم سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو، پر پلیز مجھ سے اس طرح خفا نہیں ہو۔ میں مر جاؤں گا، کوئی بات نہیں، تم نے جو کیا وطن کے لیے کیا، اگر میں بھی تمہاری جگہ ہوتی تو شاید میں بھی ایسا ہی کرتی۔ میں تم سے خفا نہیں ہوں، خوش رہو، میں تمہارے بغیر خوش نہیں رہ سکتا، تمہارے بغیر جینے کا نہیں سوچ سکتا، میں بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، مجھے بھی تم سے محبت ہو گئی ہے بہت زیادہ۔ عدن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا خیال ہے پھر جلدی سے نکاح کر لیں؟ غزان نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں جلدی سے کرو، اس سے پہلے کہ کچھ اور ہو جائے۔ نہیں، کچھ نہیں ہوتا، میں ہوں نا، کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ واہ واہ، دونوں کی ناراضگی شکر ہے ختم ہو گئی۔ منہ کب میٹھا کروا رہے ہو؟ میجر احد نے عدن کا ہاتھ غزان کے ہاتھ میں دیکھ کر کہا۔ عدن نے شرما کر سر جھکا لیا تھا۔ اتنے میں سیل فون بجنے لگا، ماما کی کال آ رہی تھی۔ غزان، اب میں چلتی ہوں۔ عدن جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ احد، تمہیں چھوڑ آؤں گا۔ عدن، اکیلی مت جاؤ، احد بھائی مجھے چھوڑ آئیں تو احد بھائی کو چھوڑنے کون آئے گا؟ کم آن غزان، میں بچی نہیں رہی، چلے جاؤں گی، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ السلام علیکم ماما جان۔ عدن گھر آتے ہی ماما کے پاس کچن میں چلی گئی اور جھٹ سے ماما کے گلے میں دونوں بازو ڈال کر ماما کے گال چوم لی۔ اف، عدن کب بڑی ہوگی، ابھی گر جاتی، میں ڈرا کر رکھ دیا، اتنی دیر لگا دی آج، چلو چینج کر لو پھر میں کھانا لگواتی ہوں۔ عدن کھلکھلا کر ہنستی۔ اف ماما، آپ بھی بڑی ہو جائیں، اب میرے ہوتے ہوئے بھلا آپ کیسے گر سکتی ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ کھانا لگوائیں، میں فریش ہو کر آتی ہوں۔
आफाफ को अदन आज बहुत खुश और पुरसकून दिखाई दे रही थी, इस अदन से बहुत मुख्तलिफ जिसको पढ़ने, रोने और रातों को चलते हुए देखा करती थी। मैं जानती थी हिम्मत ही न कर पाती थी। अदन का दर्द बांट सकती, अपनी रूह पर बदनुमा दाग मिटा सकती। अरीब की लगाई आग में तो शायद आने वाली नस्लें भी जलेंगी, वो जानती थी। लेकिन आज अदन को इतना पुरसकून देकर वो बहुत खुश हुई और मुस्कुराते हुए मासी को बुलाने लगी। अदन खाना खाकर बिस्तर में लेटी ही थी कि मोबाइल की बीप बजी। अदन ने मोबाइल उठाया और मैसेज रीड किया। अनजान नंबर से मैसेज था। तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ अदन। अदन दुख से मुस्कुराते हुए मैसेज टाइप करने लगी। मानने वाली बात ही नहीं, झूठे हो तुम, और सेंड कर दिया। जैसे ही गजान ने मैसेज रीड किया, गजान की कॉल आने लगी। अदन ने कॉल पिक की। क्या कह रही हो अदन, तुम मुझे अभी भी झूठा समझती हो? गजान दुख से पूछ रहा था। अदन ने कर्ब से आंखें मूंद ली और कहने लगी, गजान मैं तुम्हें झूठा नहीं समझती, पर मैं अपनी अना अपने ज़मीर का क्या करूं जो मुझसे पिछले 5 सालों का पल पल का हिसाब मांगता है। बोलो क्या करूं? क्या दे सकते हो इन 5 सालों का हिसाब? तुम सिर्फ मेरी इस एक अजियत का अंदाज़ा नहीं लगा सकते जो लोगों की नज़रों की सूरत में मैंने बर्दाश्त की। बताओ किस किस को वजाहत देती हूँ? तुम नहीं जानते अगवाशुदा लड़की का माशरे में क्या मकाम है। क्या तुम्हारी मोहब्बत इस कदर गुदगरज थी कि मेरे रद्द अमल ज़ाहिर करने पर तुमने मुझ पर हर तरह का ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया? जब मुझे राह ने अगवा किया था तब तुम्हें लगा था, तब तुमने मेरा भी इतबार ना किया। तुम्हारी नज़रों ने मेरे रेह से एतबार की भी धज्जियाँ बिखेर दी। तुम अब भी कहते हो कि तुम्हारा और तुम्हारी मोहब्बत का एतबार करूँ। बोलो मेरी जगह तुम होते तो क्या एतबार कर लेते, माफ़ कर देते? अदन रो रही थी, गजान भी रो रहा था। शायद तुम मुझे जो सज़ा दो मुझे मंजूर है अदन, गजान रोते हुए कह रहा था। तुम्हें लगा था गद्दार की बेटी है, बेवफाई और धोखेबाजी इसके खून में शामिल है, ताल्लुक़ ख़त्म करना ही बेहतर है। यही सोचा था ना तुमने? पल भर में तुम लोग जैसे हो गए थे। मेरी अना मेरा ज़मीन तुम्हें कैसे माफ़ करे? अदन सिसकते हुए कह रही थी। तुम्हारे शायद नफ़रत का तसव्वुर करते हुए भी मैं तुमसे मोहब्बत करती रही, शायद करती भी रहूँगी। तुम्हें लगा तुम मुझे अब याद कर रहे हो? क्या गुज़रे 5 सालों में तुम्हें याद नहीं आई? मुझे रातों को नींद नहीं आती थी, मैं पढ़ने की कोशिश करती, तुम मेरे सामने आ जाते। तुम्हारी यादें, तुम्हारी बातें, बाबा की लगाई हुई आग, पल पल झुलसती और तड़पती रही हूँ मैं गजान। अदन मैं हर बात का अजाला करूँगा, बस मुझे एक मौका दो, सिर्फ एक मौका। तुम्हें क्या पता ये दर्द जुदाई मेरे लहू में जहर बनकर दौड़ता रहा है। तुमने अजियत सही है, मैंने भी सही है। तुम क्या जानो मेरी ज़ात, मेरी रूह तो कहीं भी नहीं थी। तुम्हारे जाने के बाद से अब तक बेजान वजूद के सहारे अब भी जो कहो तुम जैसे कहो, लेकिन इस जुदाई का दर्द बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं मुझ में। फैसला अब भी तुम करोगी। अगर बिछड़ने का फैसला करोगी तो दुआ करना कि यह फैसला सुनने से पहले ही मैं मर जाऊं। अदन वो रो रहा था, सिसक रहा था। वो अब अदन को नहीं छोड़ सकता था, जुदाइयों का दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तन्हाइयों के गुप्त अंधेरे इसके वजूद को नाक की तरह डसने लगे थे। अदन के बगैर वो जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। गजान के लफ्ज़ टूट रहे थे, सांसें उखड़ने लगी थी। डॉक्टर साहब जो चेकअप के लिए आए थे गजान की हालत देखकर डर गए थे। मोबाइल गजान के हाथ से गिर गया था। नीम गनूदगी में भी वो अदन को बुला रहा था। अदन मत जा यार, ऐसे ना करो अदन। अदन एमरजेंसी, मेजर गजान की तबीयत दोबारा बिगड़ रही है। ड्यूटी पर मौजूद सारे डॉक्टर साहब की एक फ़ोन कॉल पर दौड़े चले आए। अदन गजान से सब कुछ तो कह चुकी थी, लेकिन पुरसकून होने के बजाय अजीब सी बेचैन हो रही थी। जब कुछ समझ ना आया तो घुटनों पर सर रख कर रोने लगी। अचानक सेल फोन वाइब्रेट करने लगा। गजान की कॉल होगी ये सोचकर जल्दी से अटेंड किया। गजान रोते हुए वो बेख्तियार बोली, मैं साथ बोल रहा हूँ। अदन हो सके तो जल्दी से हॉस्पिटल पहुँच जाओ, सब हैरियत तो है डॉक्टर। गजान ठीक है ना? हैरियत ही है, तुम जल्दी से पहुँच जाओ। साथ ने अदन का जवाब सुने बगैर कॉल काट दी। मासी जो दूध का गिलास अदन को देने आई थी, अदन को उजरत में गाड़ी की चाबी उठाते और जाता देखकर पूछने लगी, छोटी बीबी कहाँ जा रही हैं? इस वक्त सब हैरियत है ना? सब हैरियत है, बस इमरजेंसी है, हॉस्पिटल जाना है, मामा को बता देना, शायद वो वापसी में देर लगे। उजलत में जवाब देकर अदन भागते हुए रूम से निकल गई। अदन बीबी भी अजीब सी है, अभी आई है, अभी माँ को बताए बगैर चली गई। खैर हमें क्या, जो भी करे, जब माँ को इतराज़ नहीं तो हमें क्या। मासी बुड़बुड़ाते हुए आफाफ आबिद को बताने चल दी। अदन जैसे ही आईसीयू के पास पहुंची, नर्स ने उसे अंदर जाने से रोक दिया। बीबी आप बाहर रुके, अंदर नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? रास्ता दो मुझे, हटो, दूर हटो। क्या हुआ? कैसा शोर है? साथ शोर सुनकर बाहर निकल आया। अदन को देखते ही खामोश हो गया। नर्स को जाने का इशारा किया। क्यों बुलाया आपने?
क्या हुआ गजान को? अदन का दिल सूखे पत्ते की तरह लरज रहा था। आपने गजान को कुछ कहा? अदन जवाब देने के बजाय रोने लगी थी। हम कोशिश कर रहे हैं उन्हें बचाने की। उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई है और वो मुसलसल आपका नाम ले रहे थे। तबीयत ना संभली तो कुछ भी हो सकता है। शदीद कमज़ोरी और सर पर गहरी चोट उन्हें कोमा में भी ले जा सकती है। वो अगर खुद चाहे तो ज़िंदगी की तरफ वापस आ सकते हैं, लेकिन वो खुद ज़रा भी कोशिश नहीं कर रहे। प्लीज़ आप अंदर जाएं। अदन भागते हुए गई। गजान के पास आई थी। गजान उठो, आंखें खोलो, देखो तुम्हारी अदन कहीं नहीं जा रही, तुम्हारे पास है। प्लीज़ गजान। अदन को किसी की परवाह नहीं, इसकी वजह से इसका गजान दोबारा मौत के मुंह में जा रहा था। साथ ने सबको रूम से बाहर जाने का कहा, लेकिन सर डॉक्टर असद कुछ कहने लगे। बस अब ठीक हो जाएगा गजान, आप चले जाएं। डॉक्टर असद कंधे उचकाकर बाहर की तरफ जानिब चल दिया। सच कहते हैं, सांप के डसे का इलाज भी मुमकिन नहीं, लेकिन इश्क के डसे का इलाज नहीं होता। इश्क ही कायनात का वो वाहिद मर्ज है जो जान निकाल लेता है, जिंदगियां उजाड़ देता है। मैदान जंग में दुश्मनों को मात देने वाले और जिनकी ललकार से दुश्मन की रूह तक लरस जाती हो, इश्क के सामने उनकी हालत एक हारे हुए जवारी की सी हो जाती है। गजान, खुदा के लिए आंखें खोलो, तुम्हें कुछ हुआ तो तुम्हारी अदन मर जाएगी। आई एम सॉरी गजान, आई एम सॉरी। शिद्दत से रोने की वजह से अदन के लिए मजीद बोलना मुश्किल हो रहा था। अदन देखो, हार्ट बीट नॉर्मल हो रही है, पलकें भी लरज रही हैं, गजान ठीक हो रहा है, हौसला करो। साथ खुशी से चिल्लाते हुए कहने लगा। गजान ने उसी लम्हे आंखें खोली थीं। अदन को अपने पास देखकर ज़ेरे लब मुस्कुराया था और तमानियत से दोबारा आंखें बंद कर ली थी। अपने हाथ की गिरफ्त अदन के हाथ पर मजबूत कर ली थी और ज़ेरे लब बोला था, मेरी अदन, बहुत जल्द दर्द जुदाई ख़त्म होने वाला है, बहुत जल्द। अदन ने धीरे से मुस्कुराते हुए अपना सर गजान के शाने पर रखते हुए आंखें मूंद ली थी और ज़ेरे लब बोली थी, इंशाअल्लाह। दूर कहीं आसमान पर चमकता चांद उनके मिलन पर मुस्कुराया था और उनको हमेशा साथ रहने की दुआ देते हुए बादलों में छुप गया था। अदन रात गए घर लौटी थी। जैसे ही अपने कमरे में दाखिल हुई, बेड पर एक खाकी लिफाफा मौजूद था। अदन ने उजलत में लिफाफा खोला। इसमें मौजूद कॉल लेटर को देखकर उसके आंसू टप टप बहने लगे। इस कॉल लेटर के साथ एक और खत भी मौजूद था। अदन बेटा, तुम्हारे बाप ने जो कुछ किया इसकी वजह से तो क्या तुम्हारी आने वाली नस्लें भी आर्मी ज्वाइन नहीं कर सकती थी? लेकिन तुमने अपनी जान पर खेलकर जिन मुल्क दुश्मनों के खिलाफ सबूत इकट्ठे किए और अपने देश के बच्चों की जान बचाई, तुम्हारा ये जज्बा और इश्क हमें अपना फैसला तब्दील करने पर मजबूर कर चुका है। मेरी बेटी, अब तुम्हें अफवाजे पाकिस्तान का हिस्सा बनने पर दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अदन इससे आगे लिखा ना पढ़ सकी और सजदे में गिर गई। अल्लाह ने उसकी दुआएं सुन ली थी। अब वो हिचकियों से रो रही थी। या अल्लाह, ये सच है तो जिसे चाहे इज्जत दे और तू जिसे चाहे जिल्लत दे। ऐ अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने हमें जिल्लत की गहराइयों से निकाल कर इज्जत अता फरमाई। बेशक तू हर चीज़ पर कादिर है। मेरे मौला, अदन के ये आंसू खुशी के आंसू थे। अल्लाह ने उसे नवाज दिया था, इज्जत के साथ साथ गजान भी दे दिया था। अब जीस्त के कठिन सफ़र में मनपसंद हम सफ़र के साथ जीस्त के बाकी दिन गुजारने थे। अब पाकिस्तान के लिए कुछ करने और दुश्मन को जलाकर राख करने में गजान भी उसके साथ था। एक नया सफ़र उसका मुंतज़िर था। ज़िंदगी यकदम हसीन हो गई थी। तमानियत से मुस्कुराते हुए वो दोबारा रब के हुज़ूर सजदा रेज़ हो गई थी।